हम रात को अक्सर सोते हुए झटके से उठ जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई सो रहा है और उसकी जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेज से इधर से इधर चल रही हैं, एंड देन वी रियलाइज दैट द पर्सन इज प्रोबेबली ड्रीमिंग। बहुत बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम अक्सर रात को 3 से 4 बार उठते हैं, परेशान भी रहते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी नींद पूरी ना होने का क्या कारण है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज हम बात करेंगे स्लीप। हाँ जी, स्लीप पैटर्न की बात करेंगे। What are the various stages of sleep? What is REM? Why REM is important? And there are so many astonishing and lovely and amazing things that we are going to learn today about our sleep. So the sleep generally happens in 4 to 5 phases during the night. सबसे पहला वाला जो फेज होता है that is also known as drowsy stage, right? और ये drowsy जो stage है ये this is a little between, you are awake a little and then you are feeling sleepy also. So you are transitioning between sleep and being awake. और इस टाइम पे ब्रेन जो है वो थीटा वेव्स प्रोड्यूस करनी शुरू करता है। ये फेज करीब 5 से 10 मिनट का होता है जब हम सोने के मूड में होते हैं, हम सोने वाले होते हैं, आधी नींद में और आधे जगे हुए होते हैं। सो दिस हैपेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। इट्स अबाउट 5 to 10 minutes. इट्स ए नॉन REM फेज। ना इस पूरे स्लीप के दौरान REM का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो फर्स्ट वाली स्टेज है विच इज ऑल्सो नोन एज ड्राउजी स्टेज विच लास्ट फॉर 5 to 10 minutes, इसके अंदर हम लोग जग भी जाते हैं और जनरली हम अपने खराटों से खुद ही जग जाते हैं, या थोड़ी सी कहीं आवाज हुई या एकदम लाउड टीवी की आवाज सुनाई दी तो हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। देन वी मूव टू द सेकेंड स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज लाइट स्लीप, जनरली लास्ट फॉर अबाउट 20 minutes. And in this stage the brain starts producing rhythmic waves and these waves are known as sleep spindles. If in case you have been using Fitbit or any gadget on your hand, you would realize the night sleep when you check, so you'll find those spindles there. So ऐसे टाइम में जब सेकेंड स्टेज आती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और हमारी हार्ट रेट भी स्लो होनी शुरू हो जाती है। इट इज अ नॉन रैपिड आई मोमेंट स्टेज। नाउ फ्रॉम हियर वी मूव टू द थर्ड स्टेज एंड देन द फोर्थ स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेजेस हैं। अब जो थर्ड स्टेज की हम बात करें ये है मॉडरेट स्लीप। नाउ ये जो मॉडरेट स्लीप है इस टाइम पे हम ऑलमोस्ट अच्छी नींद में होते हैं। इस टाइम में जो ब्रेन है द ब्रेन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग डीप एंड स्लोअर ब्रेन वेव्स एंड दे आर नोन एज डेल्टा वेव्स। जो मसल एंड टिश्यू का रिपेयर है वो इस स्टेज पे हो रहा होता है। So that is why this sleep and this phase is also equally important. And इस टाइम पे भी हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, हमारी ब्रीदिंग रेट ड्रॉप करती है, बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये रिपेयर का टाइम है। So this is the time when the cells are getting repaired. Then we move on to the fourth stage, which is very closely linked with the third stage, and that is known as deep sleep stage. Generally, it lasts between 30 minutes to 40 minutes. And what happens if you are prone to sleepwalking? That happens in this stage. If the children are bedwetting, that also happens in the deep sleep phase. Because what happens is the brain is not responsive to any noises which is around us, any activities which are happening around us, and this is the time when we are totally away from what's happening all around us and we are in a deep sleep stage. So this is most important in our sleep because again this is the time when lot of repair is happening. Now coming to this stage may or may not be an REM. The next stage, which is the 5th stage, is the most important stage, which is the rapid eye movement stage. You'll see rapid eye movement stage. What is the significance of REM? Why REM is important? Why do we have to understand that we have to have an REM stage? And अगर ये नहीं होगी तो हम next day fresh feel नहीं करेंगे, हम fresh नहीं उठेंगे। Now what is this stage which is called REM stage? Rapid eye movement stage में the muscles are totally relaxed. Apart from that, the brain system is extremely active at this stage. Extremely active.
बिकॉज इस स्टेज में आके क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द एरिया, बिकॉज आपका ब्रेन इतना स्टिमुलेट हो जाता है दैट इट इज असेंशियल. एंड व्हाई द ब्रेन इज स्टिमुलेटिंग एट दिस REM स्टेज? बिकॉज इट इज असेंशियल फॉर यू टू लर्न एंड ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रेन टू रिटेन द मेमोरीज. सो जो आपको पुरानी चीजें याद रहनी है, इवन आपने पढ़ाई करी है, वो सारे क्वेश्चंस याद हैं कि नहीं, वो सारे चैप्टर्स अच्छे से याद हैं कि नहीं, वो सारा कुछ इसी स्टेज में होगा, 5th स्टेज में होगा. तो जब आप किसी बच्चे को देखते हो या बड़े को देखते हो दैट द आई बॉल्स आर मूविंग रैपिडली हियर एंड देयर, डोंट डिस्टर्ब दैट पर्सन. दैट पर्सन इज इन अ डीप स्टेज, REM स्टेज. उस टाइम पे उस पर्सन को नहीं छेड़ो, बिकॉज तब ब्रेन अपना मोस्ट एक्टिव है. अब जब ब्रेन मोस्ट एक्टिव होता है उस टाइम पे आपके साथ एक और चीज होती है, आपके मसल्स जो हैं दे टेंड to stop working vis-a-vis, they will not respond. The brain will make the entire body a little paralytic because the brain is working at that time and it doesn't want the muscles to work at that point in time. So what will happen? अक्सर हम देखते हैं, हमें रात को जब बहुत REM के स्टेज के सपने हमें काफी हद तक याद रहते हैं. तो जब वो सपने हमें याद रहते हैं तो कोई अगर ऐसा सपना आ रहा हो जिसमें आप चाहते हो कि मैं उठ के भागूं या मैं उठ के किसी को पकड़ लूं, या जैसे मुझे अभी भी याद है बचपन में मेरे को कई बार सपना आया करता था कि चोर आए हैं, वो भाग रहे हैं और मैं उनको पकड़ना चाह रही हूँ, और या मैं मुंह से आवाज लगाने लगी हूँ मम्मा मम्मा, बट मुझे लगता था मैं आवाज लगा ही नहीं पा रही हूँ, मैं चाह के भी आवाज नहीं लगा पा रही हूँ. So generally now I realize कि that time the muscles will not be working. So since the muscles will not be working, that is why when brain will paralyze our muscles, so हम कुछ कह नहीं पाते. But then we do remember those dreams very well and very vividly. So इस time पे increased brain activity होती है, temperature reduces and the brain is most agile at that point in time. Now when we have said कि REM important है, REM important इसलिए है कि हमारा ब्रेन काम तभी अच्छे से करेगा जब REM होगा. अगर आप स्टेज 5 को ढंग से नहीं स्लीप ले पाओगे, अगर आप स्टेज 5 में बार बार जग जाओगे या आपकी REM प्रॉपरली नहीं होगी, तो you will not be fit and energetic, you will start getting very forgetful, you will not be remembering most of the things. Especially for students, it's very important to complete your 5 phases of sleep. क्योंकि अगर आपको लगता है मैंने तैयारी तो पूरी करी थी, अच्छे से किया था, रात को 2 बजे तक जग के 3 बजे तक जग के मैं पढ़ा था, मैंने सारे पॉइंट्स किए थे, लेकिन एग्जाम में जब पेपर सामने आया तो मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया. क्यों? क्योंकि आपने वो टाइम ही नहीं दिया ब्रेन को 5 स्टेजेस, आपकी बॉडी को कि 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप पूरा कर ले. आपने टाइम ही नहीं दिया अपने ब्रेन को REM फेज में से निकले. जब तक REM फेज से निकलेगा नहीं, तब तक आपका ब्रेन वो कहते हैं ना रीवैम्पिंग नहीं होगी. जैसे गाड़ी की सर्विस होनी जरूरी है, ऐसे ही ब्रेन की भी होनी उतनी ही जरूरी है. So with this information, with this sharing, I think you're going to enjoy this, and please write back so that I also understand as to are you really enjoying the various topics that I'm coming forth with. Thank you so much. God bless you. Stay happy, stay healthy and stay blessed. God bless.